This is our second video of the chapter Nazism and the Rise of Hitler. In our previous video, we read about that how Germany defeated over there, what were the effects of war. Now, today we are going to read about the topic is political radicalism and economic crisis. Now, the period of after the war had a great impact on political as well as economic conditions of Germany. Here, the Weimar, as they were in the totally oppositions, and the revolutions, many of the revolutions occurred throughout the year because a lot of people were in a opposition of Weimar, and and the revolutionaries formed a separate party there which was named as the Separatist League and the Soviets of Workers and Sailors. Soviet means a group of workers and sailors. They just make a group over there, and this group was not established, and this group was established in many cities in the Europe. Here the revolutionaries were inspired by the Bolsheviks, as well as they wanted a Soviet style of a government in their own country. Now the Weimar Republic, which was formed by the Socialist Democrats and the Catholics, they just want to give a new shape to country, that is they just want to bring a democratic republic in the country. Who want the Weimar Republic? And the Weimar Republic was formed by Socialist, Democrats and the Catholics. Now, Weimar basically crushed the revolution with the help of various people, and that organization was known as our Free Corps. Here you can underline that veterans organization which was known as our Free Corps. Now the Separatists were forced to take back, and for this thing they founded their own party which was named as the Communist Party of Germany. Clear? The Communist Party of Germany was framed at that time. During this period, communist, socialist, they just became enemies, and they could not able to make a common reason to unite together. अभी दोनों अलग अलग हो गए थे. They just become a common enemies, and they just become a common enemies of the Hitler. ये दोनों मिलकर interest इनके अलग अलग थे, but still they cannot able to unite together so that they can able to frame a group against the Hitler. Now the revolutionaries, the militants, all were considered. They just want to find out the solution of all these problems. In 1923, country faced a lot of crisis, economic crisis the country faced, and Germany had to fight for a loan, and they had to pay all the losses in the gold. भाई जितना भी लॉस हुआ है सारा का सारा लॉस उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गोल्ड में पे करना पड़ेगा. क्लियर? बिकॉज एट दैट टाइम दे हैड अ गोल्ड रिजर्व्स, बट जब उन्हें सब लोन पे करने पड़े, लॉस पे करने पड़े, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड उनका जो था सारा का सारा गोल्ड रिजर्व्स कम होना स्टार्ट हो गया. इन 1923 व्हेन जर्मनी रिफ्यूज, अब जर्मनी कह दिया कि हम नहीं पे करने वाले हैं कोई वॉर लोन्स, तो उस टाइम पे उनका जो एक इंडस्ट्रियल एरिया था रुर, दैट वाज टेकन ओवर बाय द फ्रेंच ने उनका ये जो एरिया था वो ले लिया. नाउ जर्मनी जो था हमारे पास वहाँ पे एक अच्छी सी, उन्होंने यहाँ पे क्या करा, पेपर करेंसी उन्होंने प्रिंट करनी स्टार्ट करी बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में. ठीक है, अब जब बहुत ज़्यादा मनी हमारी पूरी की पूरी जर्मनी में सर्कुलेट हो रही थी, तो जर्मनी जो थी उसकी अपनी करेंसी की वैल्यू यहाँ पर डाउन होनी स्टार्ट हो गई. अप्रैल में हमारे पास, इन अप्रैल द US डॉलर, जब US डॉलर हमारे पास क्या था, इट्स इक्वल्स टू 24,000 मार्क्स. सो जुलाई में वो हो गया हमारे पास 3,53,000 मार्क्स. सो यू कैन सी दैट कि एक US डॉलर की वैल्यू जो थी वहाँ पे कितने मार्क्स से इक्वल आ रही थी. यहाँ पे मार्क्स इज अ वैल्यू विच वॉज यूज्ड इन द जर्मनी. ठीक है, एंड एज द वैल्यू कोलैप्स ड्यूरिंग दैट टाइम, सो प्राइजेस ऑफ गुड्स, अब चीज़ों के प्राइस आने लगे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए थे, एंड विच क्रिएट the hyperinflation which is known as the high economic crisis in the country.
Now during this time, American rescued by the Germany and they just introduced a new plan which was named as the Deuce Plan. And then they just make a plan to make Germany free from the financial burden. Clear? So this is all about the economically and political radicalism faced by the Germany. Now the next we are having is the year of depression. The period from 1924 to 1928 show some stability, but after that in the period of 1929, this period was known as the severe tension wala period tha, because during this period a great severe depressions were there. और डिप्रेशन कैसे कैसे था, लेट अस हैव एक्सप्लेनेशन अंडर. इन 1929, ठीक है, द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जैसे कि स्टॉक मार्केट होती है इसी तरीके से वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वहाँ पे यूएस की सबसे फेमस मार्केट थी. नाउ दिस मार्केट जस्ट क्रैश्ड. वाई? बिकॉज जितने भी स्टॉक थे उन सब के प्राइजेस क्या होने लगे, वो धीरे धीरे करके कम होने लगे. एंड जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों के पास शेयर्स थे, दे स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट्स टू सेल ऑल दीज शेयर्स इन द मार्केट. ऑन 24 अक्टूबर इफ़ यू टॉक अबाउट, सिर्फ उसी दिन के अंदर 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो मार्केट में निकल चुके थे, जिसकी वजह से बहुत हाई रेट ऑफ डिप्रेशन हमारी इकोनॉमी में आ गया था. अब 1929 से 1932 के बीच में हमारे पास यहाँ पे एक नेशनल इनकम जो थी हमारे पास यूएसए की, वो भी जस्ट हाफ हो गई. सपोज इफ दे आर अर्निंग दैट 100 करोड़ नो, तो वो 50 करोड़ पे आ गई यहाँ पे. एंड बिकॉज ऑफ विच एक्सपोर्ट कम होने लग गया, फार्मर्स जो थे उनकी सिचुएशंस ख़राब हो गई. सो इस तरीके से लोगों ने अपने पैसे वापस मांगना स्टार्ट कर दिए मार्केट से. सो दीज आर द कंडीशंस दैट व्हाट वर द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन. किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे. रिसेशन पीरियड हमारे पास आने लगा. यूएस की जो इकोनॉमी थी वो भी हमारे पास धीरे धीरे करके डाउन होने लगी. जर्मनी जो थी वो भी वहाँ पे बहुत बुरी तरह से हिट हो चुका था यहाँ पे. एंड इन सब चीज़ों की वजह से जर्मनी को अपनी इकोनॉमी रिकवरी करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन्होंने यूएस से शॉर्ट टर्म लोन्स और लेने स्टार्ट कर दिए, सो दैट ये अपना बैंक बैलेंस एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दे. बट लोन ले रहे हैं तो अल्टीमेटली दे हैव टू पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल. नाउ जब इकोनॉमिक क्राइसिस इतने सारे हमारे पास वहाँ पर आ चुके थे, तो इस टाइम पे जो हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स रहे, विजिबल इम्पैक्ट्स रहे जो हमारे पास इकोनॉमी जर्मनी में जो दिख रहे थे वहाँ पे, वो यहाँ से स्टार्ट है हमारे पास. व्हाट वर द विजिबल इम्पैक्ट्स. अब 1929 में हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था, 1929 में जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो हमारा डायरेक्टली, मतलब जितना भी था ना, सपोज अगर 100% था तो हमारे पास 1932 में आते आते वो 40% तक आ गया. वर्कर्स की जॉब चली गई, और अगर वर्कर्स काम कर भी रहे हैं तो दे वर गेटिंग अ वेरी लो वेजेस. क्लियर? एंड जो हमारे पास जॉब्स थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगी. अब जॉब्स नहीं थी तो यूथ ने क्या करना स्टार्ट करा, क्रिमिनल एक्ट्स करने स्टार्ट उन्होंने कर दिए थे. सैलरीड पर्सन और जितने भी पेंशनर्स थे, उन जिनको पेंशन्स मिलती थी, उनकी जो सेविंग्स थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई. छोटे छोटे बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, उनको भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस यहाँ पे फेस करने पड़े थे. नाउ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम वर नॉट हैविंग सफिशेंट मनी कि वो फूड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे खरीद सकें. ठीक है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी, मतलब दे कैन नॉट एबल टू फीड देयर चिल्ड्रन, वुमेन एज वेल एज दे कैन नॉट. यू कैन सी दैट people had a lack of hope during that period of time ki whether their condition is going to be stabilized or not. Clear? So this is your year of depression. Now guys, kindly go through with the topic, both the topics, the political radicalism and the year of depression. Try to write down all these points which I explained you in the different points. Clear? Write down all these points in your language. It will be easy for you to learn the chapter. Clear? Till then, take care and bye-bye.